હું બ્લેકસ્ટોનમાં માર્કેટિંગ એન્ડ કમ્યુનિકેશન હેડ કરું છું. ગયા વર્ષ પણ હું અહીંયા આવી હતી. ત્યારે અમારું આઈપીઓ હતું નેક્સસ સેલેક્ટ રીટનું. બ્લેકસ્ટોન ઇન્ડિયાનું સૌથી મોટું ફોરેન ઇન્વેસ્ટર છે વિથ ઓવર $50 billion in AUM since inception. આધાર હાઉસિંગમાં બ્લેકસ્ટોન 2019માં ઇન્વેસ્ટ કર્યું and since then the company has grown from strength to strength. તો આજે અમે તો બહુ પ્રાઉડ છે કે આજે અમે આધાર હાઉસિંગના આઈડિયા કરે છે. આ બ્લેકસ્ટોનનું 9th IPO છે in the country and હું આશા કરું છું કે very soon हम एक और लेके यहाँ पर आएंगे. So thank you very much for joining us today and let's start the proceedings. Representing Aadhar Housing Finance today, we have with us Mr. Devshankar Tripathi, Executive Vice President, Mr. Rishi Anand, Managing Director and Chief Executive Officer, Mr. Rajesh Vishwanathan, the Chief Financial Officer, and Mr. Sanjay Mulchandani, the Head Financial Planning. Also representing the banker, we have Mr. Rajat Rawal, Vice President and Head Retail Syndication Corporate Finance from ICICI Securities. To start the presentation, I would request Mr. Rajat Rawal to do the opening and then we will hand it over to Mr. Rishi Anand to run the presentation. Thank you. Thank you, Deepa. Namaskar. IPO ની માહિતી આપું તો IPO ચાલુ થશે 8મી મે બુધવારે અને IPO ક્લોઝ થશે 10મી મે શુક્રવારે. એન્કર ટુ પબ્લિશ થશે 7મી મે મંગળવારે. IPO નું પ્રાઇસ બેન્ડ છે 300 થી 315 રૂપિયા. 47 શેરનો લોટ છે. IPO છે 3000 કરોડનો, જેમાં 2000 કરોડનું ઓફર ફોર સેલ છે અને ફ્રેશ ઓફર છે 1000 કરોડની. 50% QIB, 15% HNI અને 35% રિટેલ. થોડી કંપનીની માહિતી આપું તમને તો કંપની રિટેલ ફોકસ્ડ હોમ ફાઇનાન્સ કંપની છે લો ઇન્કમ હાઉસિંગ સેગમેન્ટમાં. કંપનીનું AUM 20,000 કરોડ છે ડિસેમ્બર 23ના ફાઇનાન્શિયલ પ્રમાણે અને જે કંપનીને લાર્જેસ્ટ અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની બનાવે છે. કંપનીનું 100% સિક્યોર ગ્રેન્યુલર રિટેલ બુક છે. કંપનીનું પેટ 550 કરોડ છે, જે હાઈએસ્ટ ROE 18.14% ફાઇનાન્શિયલ ડિસેમ્બર 23ના પ્રમાણે છે. હવે હું રિશીજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે કંપનીની ડિટેલમાં તમને માહિતી આપે અને કંપનીનું પ્રેઝન્ટેશન આપશે. થેન્ક યુ. Thank you, Rajat. Very good afternoon, everyone. First thing first, very thank you to all of you to take out time to attend the IPO process of Aadhar Housing Finance. In the next 15-20 minutes between myself, Rajesh and Mr. Tripathi, we will try and give you a flavor of Aadhar Housing Finance क्या है, कब start हुआ, क्यों start हुआ, purpose क्या था, and where are we today. So the journey started in 2010 as Rajat just briefed you. क्यों जर्नी स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने हमारे अर्स्टवाइल प्रमोटर्स को अप्रोच किया टू स्टार्ट अ थर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अ न्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन 2010. Now, why was IFC involved? IFC wanted to start a new housing finance company जो खाली लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट में फोकस करेगा. और IFC ने इस कंपनी में 20% स्टेक लिया. द प्रोमोटर ग्रुप टुक 80% स्टेक एंड द कंपनी स्टार्टेड इट्स जर्नी. इसका पर्पस था फोकस इन लो इनकम स्टेट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ IFC था. इसकी वजह से हमको फर्स्ट 5 years के लिए मैंडेट किया गया कि हमारी जर्नी स्टार्ट एंड ऑपरेशन ऑफ आवर जर्नी विल बी ओनली इन द लो इनकम स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज ऑफ विच हमारा बर्थ स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश. उसके बाद हम गए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल इन द फर्स्ट 4 to 5 years ऑफ आवर जर्नी. जब ये 5 साल का पीरियड खत्म होने वाला था तो हमको IFC ने अलाउ किया कि आप 1-2 स्टेट्स और बड़े खोल लीजिए. तो हमने राजस्थान, गुजरात, MP were the states we launched our business. And in 2016 we launched all the big states in the country
विच वॉज माइनस साउथ. साउथ में हमने एक भी ब्रांच नहीं खोला. साउथ में इसलिए ब्रांच नहीं खोला कि क्योंकि विद इन द ग्रुप देयर वाज अनदर स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कॉल्ड DHFL वैश्या हाउसिंग फाइनेंस विच वाज ऑपरेटिंग इन साउथ. एंड समवेयर देयर वाज अ थॉट कि हम दोनों कंपनीज को मर्ज कर देंगे, which actually happened in 2017 early. Aadhar Housing Finance merge हो गया DHFL वैश्या हाउसिंग फाइनेंस के साथ, and in 2017 now we became a pan India player available in 20 states and union territory of the country. So as early as 2017 we were available in all possible states of the country. हर जगह हम पहुंच गए. There are only 2 states or 2 locations जहां हम नहीं गए और अभी भी नहीं है. एक है जम्मू एंड कश्मीर, एक है नॉर्थ ईस्ट. And as time passes we will look at opportunities in these states. So that's how the journey started. It was a key milestone. Merger was a key milestone. We became a pan-India player. After that happened 2018 September. Everybody is aware of it. NBFC crisis happened, which was led by ILFS and DHFL. Because of which DHFL की सारी companies were put up for sale. हम भी sale process में आ गए. The process continued for about 6 months, and eventually in 2019 June. Blackstone Group acquired 100% stake of IFC and 100% stake of promoters, and eventually became 98.7% stakeholder in the company. 1.2% stake was earlier in DHFL, in Vaisya was held by ICICI Bank. They continue to hold that 1.2% even today. So that is the journey of the company. Blackstone के आने के बाद obviously there has been no looking back from, we got a very strong promoter, so obviously there has been no looking back. I will try and give you a flavor of ये 15 साल की जर्नी में या 14 साल की जर्नी में हमने क्या अचीव किया है. रजत, कंपनी की स्थापना से बताया, लेकिन इसके साथ में 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. कंपनी का संचालन कैसे होता है, कंपनी का बोर्ड क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी के एम्प्लॉई क्या है. तो जहाँ इतनी अच्छी कंपनी आपने उसके बारे में सुना, उसके पीछे हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग बोर्ड है. हमारे बोर्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं. मिस्टर OP भट्ट का नाम आप सबने सुना होगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हैं. वो हमारी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. शर्मिला करवे PwC में 25 साल तक ऑडिट डिपार्टमेंट रही है. हमारी कंपनी की ऑडिट कमेटी की वो चेयरपर्सन है. और तीसरी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी डॉक्टर निवेदिता हरन हैं, जो कि केरला गवर्नमेंट की एक्स चीफ सेक्रेटरी रही हैं, एक्स IAS ऑफिसर हैं. इसके अलावा भी है 3 डायरेक्टर्स फ्रॉम द ब्लैकस्टोन हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी. नंबर 1 मिस्टर अमित दीक्षित इज द co-head of Blackstone Asia. मुकेश मेहता, he is a senior managing director in the Blackstone. And third director is Prateek Gupta, he is the MD in the Blackstone. ये 3 नामी डायरेक्टर हमारे पास प्रमोटर के यहाँ से हैं. और मैनेजमेंट से 2 लोग हैं. एक तो हमारे ऋषि आनंद जी जो भी बोल रहे थे, MD एंड CEO हैं, और मैं होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हूँ कंपनी में. तो इस तरह से हमारा बोर्ड है. इसके साथ हमारे पास जो CXOs की टीम है, इमीडिएटली जो टॉप मैनेजमेंट की है श्रेणी, उसमें हमारे श्री राजेश विश्वनाथन जी हैं. ही इज द चीफ फाइनेंस ऑफिसर. उनका 28 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. बजाज एलियांज, बजाज फाइनेंस, इस तरह की टॉप कंपनियों में उन्होंने काम किया है. उसके बाद हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत रोबस्ट है, क्योंकि लेंडिंग बिजनेस में रिस्क का बहुत बड़ा योगदान होता है. नीरज शाह हमारे पास पिछले 7 साल से चीफ रिस्क ऑफिसर हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस उनको है. बहुत ही कैपेबिलिटी से पूरी कंपनी का रिस्क मैनेज करते हैं. अनमोल गुप्ता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हैं, जिनको 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 12 साल से इज इन द हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट इटसेल्फ. हमारी कंपनी ने डेटा साइंस डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया, जिससे कि हम हर चीज़ एनालिसिस करते हैं, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो हरियाक्ष घोष पिछले 4 साल से हमारे पास हैं, एंड वेरी कैपेबल पर्सन. और इसके साथ में श्रीकांत VM जी हमारे कंपनी सेक्रेटरी रहे जब से कंपनी बनी, और अभी पिछले कुछ दिनों से चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं. हर्षदा पाठक ने उनको रिप्लेस किया, जो वाज वर्किंग अंडर हिम एज ए कंपनी सेक्रेटरी नाउ. और अनिल नायर चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं. इनको 25 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में है. तो इस तरह से हमारा जो टॉप मैनेजमेंट लेयर है वो भी इक्वली बहुत कॉम्पिटेंट है. इसके साथ हमारे पास जोनल मैनेजर्स बिजनेस हेड फील्ड में हैं, 15 हैं. एक हमारे नीरो भुज जी अहमदाबाद के जो गुजरात के बिजनेस हेड हैं वो बैठे हुए हैं.
तो हमारे पास जितने बिजनेस हेड हैं, जनरल मैनेजर हैं, इसमें 2 को छोड़ के सब कंपनी में 10 या 11 साल से हैं। ये कंपनी की एक खूबसूरती है कि इतनी इंपॉर्टेंट वेटरन टीम हमारे पास फील्ड में है। ऐसे ही हमारे हेड ऑफिस में डिपार्टमेंट्स हैं जो कंपनी में 5 से 10 साल के बीच के हैं और अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो क्रेडिट हो, ऑपरेशन हो, लीगल हो, सब में वो दक्ष हैं। तो इस प्रकार कंपनी के पास बहुत ही रोबस्ट टीम फील्ड की, हेड ऑफिस की, टॉप मैनेजमेंट की और बोर्ड सब हैं। अब मैं राजेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा वो लायबिलिटीज के बारे में बताएं। गुड आफ्टरनून ऑल। सो लाइबिलिटीज का आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारा टोटल लाइबिलिटीज अराउंड 13,000 करोड़ है दिसंबर में, और उसका अगर ब्रेकअप देखें आप तो हमारा NHB जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो हमारा रेगुलेटर है, वो रीफाइनेंस भी देता है। तो अबाउट 27% ऑफ आवर ओवर लाइबिलिटीज इज कमिंग फ्रॉम NHB। NHB इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंडिंग देता है पूरा सेक्टर को, और हमारा भी बैलेंस शीट पे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स NHB से आता है। बैंक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन जो 62% हुआ करता था, अभी 55% है। सो डिपेंडेंसी ऑन बैंक्स हैज गॉन डाउन अ बिट, एंड बाकी जो है NCDs है। हम ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक सबके साथ डील करते हैं, और NCDs हम प्रोडोमिनेटली प्लेस करते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ। ऑलमोस्ट ऑल द बिग म्यूचुअल फंड्स के साथ हम काम करते हैं NCD प्लेसमेंट में। हमने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC के साथ भी एक 7 साल का एक ग्रीन बॉन्ड टाइप प्लेस किया था। सो इन दैट सेंस हमारा ये होप यही है कि जो NCDs का टेनर है, जो टिपिकली 3 साल हो, वो और बड़े 5 साल या 7 साल हो जाए, बिकॉज हम जो लोन देते हैं होम लोन्स, वो टिपिकली लॉन्ग ड्यूरेशन लोन्स हुआ करता है। आप अगर देखेंगे फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का जो ब्रेकअप है हमारे पोर्टफोलियो का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 83% हमारा जो एसेट्स है, AUM है, वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, और 79% हमारा जो बोरोइंग्स है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर हमारे बैंकर्स, हमारे लेंडर्स ने अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो हमारे पास कैपेबिलिटी है ये इंटरेस्ट रेट को हम पास ऑन कर सकते हैं हमारे बोरोवर्स को। लास्ट 18 मंथ्स में हमने 125 बिप्स पास ऑन किया है हमारे कस्टमर्स को। हमने 50 बिप्स अक्टूबर 22 में पास ऑन किया था, और 75 बिप्स पास ऑन किया था हमने अप्रैल 23 में। उसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होता है और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होने लगते हैं, ऑब्वियसली हमको पास ऑन बैक करना पड़ता है टू द कस्टमर। सो एक फ्लोटिंग रेट रहने का एडवांटेज कस्टमर को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम फाइनेंशियल्स के बारे में जरा मोड़ लेते हैं, और जस्ट ओवरऑल मैं फाइनेंशियल्स का आपको जरा डिटेल्स देता हूँ। मेनली 9 मंथ्स वर्सेस 9 मंथ्स, 9 मंथ्स दिसंबर 22 वर्सेस 9 मंथ्स 23 दिसंबर आप देखोगे तो हमारा ओवरऑल डिसबर्समेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग 25% ग्रोथ डिलीवर किया है। इन AUM हमारा ग्रोथ रेट 21-22% है। ओवरऑल पैट 35% से ग्रो हुआ है। हमारा 9 मंथ्स पे वी वर द लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ AUM एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अक्रॉस ऑल द peers। इन टर्म्स ऑफ ROA, वेरी स्ट्रॉन्ग ROA 4.2%, ROE 18.4%। ऋषि आपको स्प्रेड के बारे में बात कर रहे थे कि 5.6 to 5.8% हमारा स्वीट स्पॉट है स्प्रेड का। हम नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में यही स्वीट स्पॉट के अंदर काम करना चाहेंगे। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू इनकम आप देखोगे तो हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो 36-37% है। 38% आपको जो बीच के साल में जो एक स्पाइक दिखा था, वही साल का जो कोविड के बाद का साल था, वहां पे हमने because the closest competitor is only 13 states. And when we talk about the bottom 50% of the players, they would typically be in 1 or 2 states or just starting up. They will take 7 to 8 years to reach where we are. So competition plays its own role. Does it bother us? If the closest competition will take 3 years, 4 years to come, what do we do? So as a strategy, we are saying we are now in all the states. We have no place else to expand. We will start going deep in states. For example, if my numbers are right, till about 2 years back in Gujarat, we were only 40 branches. In the last 2 years, we've added, we're now 63 branches. So that is our strategy. We keep going deep. We want to stay ahead. We want to get closer to the customer. Competition will be there, sir. Every business has competition. I think people have realized that this so-called underserved segment, which was 15 years back, is the right segment to serve. There is a lot of thrust by the government. I would say in the last 10 to 15 years. For example, schemes like PMAY subsidy scheme, CLSS subsidy scheme, because the government wants this segment to come up the curve. They want them to have a house of their own, because this segment creates house only once in lifetime. So I think
combination of lot of things. I don't know. I will still, sir, say it is not overserved because the potential is huge. I remember, one of the articles, one of the reports by RBI which said there is 100 million unit shortfall in the country. And the interesting part is that out of this 100 million, 95 million आता है EWS LIG segment से, जो segment को हम सर्कल जिस segment की हम लोग से बात कर रहे हैं, 95 million unit shortfall सर वही है. तो जब unit shortfall है तो somebody has to reach out to these customers to serve them. So there is enough in the plate. So I think people just have to reach out to these people. I just want to add one point. Though there are a lot of people, दो ही कंपनियां हैं जिसने एक ब्रेकआउट किया. आप देखोगे कि इफ यू टेक आवास एंड आधार अभी 19,000 करोड़ पे, आवास शायद 16,000-17,000 करोड़ के रेंज पे, और बाकी जो कंपनियां लिस्टेड पेयर्स भी वो 5-7,000 करोड़ के AUM पे. और टिपिकली ये 15,000 करोड़ का AUM जो मार्क होता है वो एक डिफिकल्ट मार्क होता है, जहाँ पे आपको जब लाने में, क्रॉस करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. जब तक आप पैन इंडिया अप्रोच करते नहीं, आप अभी आप देखोगे हम 21 स्टेट्स में, आवास भी अभी 13-12 स्टेट्स पहुंच गए. जब तक आप पैन इंडिया एस्पिरेशन रखते नहीं, जब तक आप पैन इंडिया जाने का चाहत नहीं रखते, तब तक आपका AUM ग्रो नहीं होगा. यू विल नेवर बिकम अ पैन इंडिया सीरियस प्लेयर. यू विल ऑलवेज बी अ regional player. There's nothing wrong in it. I mean, Aptus is a very good regional player in the south. Home First is a very good regional player in the west. Nothing wrong. But आपका अगर एस्पिरेशन है, आपको बुक ग्रो करना है, आपको AUM को डबल करना है, तो आपको पैन इंडिया प्लेयर बनना है. And to that extent, us and Aavas together, if you look at it, hold a significant portion of the overall affordable housing portfolio today. So in that sense, we are sort of broken out from the others. उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सर पैन इंडिया प्लेयर होने का. और हमने अपने एक्सपीरियंस ही सीखा, आधार के एक्सपीरियंस से. अभी कई स्टेट्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, तो पंजाब में अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, हरियाणा पंजाब में, आप सबको मालूम होगा वो चल रहा था. उससे क्या होता है, वहाँ का बिजनेस इम्पैक्ट होता है. बट क्योंकि हम पैन इंडिया प्लेयर हैं तो हमको मालूम है कि हाउ टू कहाँ से बिजनेस मैनेज करना है. हमारे बिजनेस में, हमारे रिटर्न्स में, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं आता. और कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं होता है सर. इट इज वर्किंग फॉर अस एट आधार, इट इज वर्किंग फॉर समबडी, इट डजंट वर्क फॉर समबडी, इट वर्क्स. हम बहुत हर चीज़ बहुत सोच समझ के करते हैं. हमारी टीमों को बोलती है कि सर बाकी लोग 2 दिन में डिसीजन लेते हैं, आप 15 दिन लेते हैं. फिर हम वो 15 दिन सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. एंड देन वंस वी डिसाइड, देन वी जस्ट गो अहेड. Say, what is the percentage of women applicants from Gujarat? सॉरी सर. What is the percentage of women applicants from Gujarat? सर हमारे ग्रोथ प्रोसेस में इट इज कंपल्सरी टू हैव अ वुमेन एप्लीकेंट. देयर आर केसेस वेयर पीपल नॉट मैरिड वुड कम एंड वांट टू टेक अ लोन. उसमें हम गारंटर लेते हैं या फैमिली के उनमें से पेरेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं लोन पे. बट इफ इट इज अ मैरिड पर्सन, देन इट इज मैंडेटरी टू हैव अ वुमेन एप्लीकेंट. सो इफ आई वर टू गिव अ नंबर, इट शुड बी एनीवेयर अपवर्ड ऑफ 95% वुमेन एप्लीकेंट्स. और सर एक जो स्कीम की मैं बात कर रहा था, PMAY CLSS सब्सिडी स्कीम, उसमें तो ये भी मैंडेटरी था कि वुमेन हैज टू ओन द प्रॉपर्टीज. What is your staff strength, and for assessment and collection, do you employ specially trained? Yes, ma'am. These are trained and they should have capability of underwriting. So sales की टीम अलग होती है, underwriting की टीम अलग होती है. Underwriting we have close to about 400 people in the underwriting team today. In collection we have close to about 600 people on roll who manage collection for us. And collection की capability अलग होती है. उनकी understanding of customer बहुत अलग होती है. Thank you so much. Join us for lunch, and if you have any questions, there's a common ID called IPO